हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, एसएससी, जेई, गेट और अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जिसमें भी गवर्नमेंट जॉब और अदर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 पे आ चुके हैं। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हेन द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ डैश is proportional to its acceleration। आपको बताना है when the lift is moving upwards thus with same acceleration the pressure exerted by is dash proportional to its acceleration directly या inversely। आपको उसको बताना है आंसर क्या होगा 201 का। दोस्तों A that is directly proportional to its acceleration when the lift is moving upwards with some acceleration the pressure exerted by a is dash directly proportional to its acceleration। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेंशन in the cable supporting a lift is more than lift is moving dash with an acceleration। tension is the cable supporting a lift is more than the lift is moving dash with acceleration upward and downward। what is the right answer? तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा 202 का ए, दैट इज़ योर अपवर्ड। किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, if the tension in the cable supporting a lift moving up downwards is half the tension when it is moving upwards, the acceleration of the lift is g by 2, g by 3, g by 4 and none of these। what is the right answer? दोस्तों 203 का D, that means none of these। यानी यदि टेंशन जो है in the cable supporting a lift moving downwards in the half is half the tension when it is moving upwards, the acceleration of the lift is none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो बॉडीज़ हैं ऑफ मास m1 और m2 हैं और आर हंग फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ रोप। आप देख सकते हैं m1 एंड m2 एंड टेंशन T एंड T पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुलीज एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी क्या होगा? g m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और 2g m1 minus m2 upon m1 plus m2 and g m1 plus m2 upon m1 plus m2 and d 2g m1 plus m2 upon m1 minus m2। what is the right answer? 204 का A दोस्तों, that is g ब्रैकेट में m1 minus m2 upon m1 plus m2 is the right answer। यानी दो बॉडीज़ हैं जिनका मास m1 और m2 है और hung from the ends of rope passing over a frictionless pulley, the acceleration of the string will be g m1 minus m2 upon क्या होगा दोस्तों? 204 का A, that is g m1 minus m2 upon m1 plus m2 is the right answer। next question, in this above questions the tension T on the string will be। अब यहाँ पर T की वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है, m1 into m2 into g upon m1 plus m2 या 2m1 into m2 g upon m1 plus m2 या m1 plus m2 upon m1 dot m2 into dot g and m1 plus m2 upon 2 m1 m2 g। this is the right answer 205 का B, that is your 2 m1 dot m2 dot g upon m1 plus m2। next question दोस्तों 206, if the mass of the both the bodies are doubled then acceleration in the string will be। यहाँ बात की जा रही है कि अगर मास जो है if the mass of the bodies as shown figure are double then acceleration string will be क्या हो जाएगा? सेम हाफ डबल 206। तो क्या जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर 206 का A, दैट इज़ योर सेम। यानी if the masses of both the bodies are doubled then acceleration in the string will be same। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 207, if the masses of both the bodies are reduced to 50% the tension in the string will be। आपको बताना है 207, यदि मास जो है बोथ बॉडीज़ का आर रिड्यूस हो जाता है 50% तब टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में? सेम होगा, हाफ होगा या डबल होगा? तो 207 का दोस्तों राइट आंसर क्या है हमारा? 207 का B, यानी हमारा हाफ होगा यहाँ पर। यानी अगर हम मास जो दोनों बॉडीज़ का
हम 50% रिड्यूस करते रहें तो टेंशन स्ट्रिंग का विल भी हाफ हो जाएगा। और अगर हम मास ऑफ द बॉडीज़ जो है वो डबल करें तो एक्सेलरेशन के केस में क्या हमने देखा यहाँ पर 206 का ए यानी आपका सेम रहता है, लेकिन इस केस में हाफ हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 150 kg का मास है और दूसरा जो है 50 kg का मास है। 150 kg एंड 50 kg मास respectively are connected by means of a string. The tension in the all the three strings dash be क्या होगा आपको बताना है, will not, यानी दो ब्लॉक हैं A और B जिनका मास है 150 kg एंड 50 kg respectively are connected by means of a string. आपको बताना है the tension on all three string dash be the same. होगा कि नहीं होगा बताना है। 208 दोस्तों, 208 का A that is will यानी the tension in all three strings will be same. Next question दोस्तों 209, if the two blocks of equal mass are attached to the two ends of the light string and one of the block is placed over a smooth horizontal plane while the other is hung freely after passing over a smooth valley or through the pulley, then the two blocks are will be have the same motion. What is the right answer? 209 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 209 का A यानी एग्री। बात फिर से क्या सुन लीजिए क्या कह रहा है। 209 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो ब्लॉक हैं जिनका मास जो है इक्वल है और अटैच है टू द टू एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग और वन ऑफ द ब्लॉक जो है वो प्लेस्ड है ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन वाइल द अदर जो है यू ह्यूंग फ्रीली आफ्टर पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली when the two blocks will have same motion, that is agree. 209 का that is your agree. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 210, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 kg है और यहाँ पर 5 kg है। 20 kg और 5 kg, तो एक ब्लॉक है जिसका मास 20 kg है जो कि लाई कर रहा है ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि कनेक्टेड है बाय अ लाइट स्ट्रिंग जो कि पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली टू अनदर मास 5 kg और विच कैन बी मूव फ्रीली इन द वर्टिकल डायरेक्शन. द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विल डैश विद द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज एंड नॉट बी इफेक्टेड. A block of mass 20 kg lying on the rough horizontal plane is connected by a light string passing over a smooth pulley to another mass 5 kg which can move freely in the vertical direction, and the tension in the string will be dashed with the increase in coefficient of friction. अब बताना है इंक्रीज डिक्रीज या नॉट बी अफेक्टेड. 210 का राय दोस्तों 210 का ए दैट इज़ योर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 201, यदि ब्लॉक ऑफ मास m1 हम देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में प्लेस्ड है ऑन इंक्लाइंड स्मूथ प्लेन जो कि कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग और पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली जो कि मास m2 है और जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो हमें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग m1 अपॉन m2 m1 डॉट g साइन अल्फा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 m2 g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2. व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? 11 का डी दैट इज़ योर m1 m2 g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि बताना है कि जो फिगर हमारा 1.52 है ये दिस इज वन फिगर 1.2 फिगर, इसमें आपको बताना है कि जो m1 को अगर हम प्लेस करें कि इंक्लाइंड रफ प्लेन्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी क्या होगा? m1 m2 क्या होगा फॉर्मूला आपको बताना है कि अगर हम मास m1 को प्लेस कर दे रहे हैं इंक्लाइंड रफ प्लेन में हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ म्यू को फाइंड करना है, तो क्या होगा आंसर दोस्तों? 213 का ए दैट इज़ योर ये वाला फॉर्मूला बनेगा m1 m2 g ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा अपॉन m1 प्लस m2. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कनेक्शन विद प्रोजेक्टाइल. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें. अ पाथ ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल
in the space is known as trajectory, and the velocity with which a projectile is project is known as the velocity of projection, and the angle with the horizontal at which projectile projected is known as the angle of projection. All of the above. क्या होगा राइट, क्या होगा हमें बताना इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है इन द विद हेल्प प्रोजेक्टाइल. That is all of the above. Next question also, the total time taken by the projectile to reach maximum height and to return back to the ground is known as the time of flight. Yes या no आपको बताना है. 215 का A यानी yes. नेक्स्ट दोस्तों, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ फॉर ट्रेजेक्ट्री आपको बताना है कि इन चार में से कौन सी इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन है फॉर ट्रेजेक्ट्री के लिए. तो दोस्तों ये वाली इक्वेशन यानी सी वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वाई बराबर एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस अल्फ़ा. दैट इज़ यू हमारे क्या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, अल्फ़ा हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और एक्स वाई जेड हमारे क्या करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द ट्रेजेक्ट्री आफ्टर टी सेकेंड. नेक्स्ट दोस्तों, द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला. ट्रू या फॉल्स आपको बताना है. तो दोस्तों क्या जाएगा राइट आंसर, दैट इज़ ट्रू. द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ पैराबोला इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़ गिवन बाई. क्या होगा फॉर्मूला इसका, 218 का ए, दैट इज़ योर टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी. टी इज इक्वल टू 2u साइन अल्फ़ा अपॉन जी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डिस्टेंस मूव्ड distance between the point of projection and the point of where the projection strikes the ground is known as range. करेक्ट या इनकरेक्ट आपको बताना है. तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट इज़ ए करेक्ट है स्टेटमेंट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज नोन एज रेंज. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय आर इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा अपॉन जी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी एंड सो ऑन. तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा. तो दोस्तों 220 का बी, दैट इज़ आर इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी. 220 का बी. तो दोस्तों ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ करिए. साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ ज्वाइन अस. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग.